Hello students, welcome back to your channel EdTech Guruji. My name is Aman Bhatia and I welcome you all to the channel. Today we are going to begin with a new topic which is effects of electric current. This topic is of 10th standard state board. So students, sit tight. Before we begin the topic, we will quickly revise what we have studied about electric current in the 9th standard, and then we see that in 10th standard what all mysteries are unfolded to us. So without any further delay, let us begin the topic of effects of current. Now, in 9th standard, students, we have studied about the definition of electric current. So, if I say what is current, the first question to think about is what is current, okay? And what kind of current I'm talking about? I'm talking about electric current, okay? What kind of a current I'm talking about here is electric current, okay? Now, when I'm saying electric current, मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा, ये इसलिए समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हम बात कर रहे हैं समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके? ये इलेक्ट्रिक जो है ये टर्म आ रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से, ओके? और करंट जो है ये बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड है करंट, ओके, जिसका मतलब होता है फ्लो, ओके, जैसे पानी का अपना करंट होता है। आर यू गेटिंग इट? मैं ये लेक्चर जानबूझ के हिंदी और इंग्लिश मिक्स में रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये समझ में आए, ओके? सो सिट टाइट विद द कंटेंट एंड आई एम श्योर दैट यू विल learn electric current in a very different way today. So what is current? Current means flow, and here this electric is coming from the term electron. So in simple words, if I have to define what is electric current, so electric current is nothing but flow of electrons, okay, flow of electrons. Now these electrons are symbolically represented as small e with a negative charge, okay? So these are negatively charged particles, and also in some books these are referenced as charge, okay, only flow of charge. In some books it is written as flow of charge, but what precisely, what charge we're talking about? We're talking about a negative charge which is called as electron, represented as E negative. Now I'm sure that we are clear with this particular definition. From this definition, if I have to give the formula of electric current, so the electric current is given by the symbol capital I, okay, and the charge is given by the symbol of capital Q, and time is given as T. So what is electric current? It is flow of charge per unit time. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम जब स्टडी करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर पाते हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द charge, flow of charge per unit time. So I'm sure that this definition and the formula is clear to you. Now we come to the unit, okay, unit of electric current. Now when I'm talking about unit of electric current, we need to be familiar about the unit of charge. So unit of charge is coulomb. It is given as C, okay, which is of course definitely named after a scientist. And unit of time is seconds, okay. So therefore the unit of current, okay, unit of current is actually coulomb per second. But this all was explained to us by a scientist whose last name was Ampere, Andre Ampere, okay. It is Andre, but in his language we refer him as Andre. Okay, so Andre Ampere is the person who has explained about this concept, and hence in honor of his work we give the unit of electric current as capital A, which is nothing but ampere, okay, ampere, okay. This is what is the unit of electric current in the SI system, okay, in the SI system. Don't ponder your mind, students. Everything will be clear. Just sit tight and listen to what I'm trying to say. I hope it is becoming more and more clear what is electric current and how the name is electric current. Name of the electric current is due to electrons and flow. So flow of electrons. Now this is a definition form will be flow of charge per unit time. So therefore the formula is I is equal to Q by T, and the unit of electric current is given as amperes. So we are good so far. Now when the current flows, okay, when will the current flow? Okay, there is a conventional direction of current. You know, understand what is the meaning of convention? It is meaning the rule. Okay, what it means is the rule what we have created as human beings. So conventional direction of current. Conventional direction of electric current
is opposite to that of electrons. What does it mean? Electrons are negatively charged particles. So if I have two terminals A and B, okay, let us say this is A and here I have B. So A and B को अगर हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो यहाँ पे हम प्लस और यहाँ पे माइनस को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ, ओके। अब वो बैटरी हमें क्या देती है? वो बैटरी हमें देती है पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हमने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें क्या होगा? देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ आएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जो करंट है, करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन की तरफ, ओके। सो दैट इज व्हाई वी से दैट द कन्वेंशनल डायरेक्शन, मतलब द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कन्वेंशनल मतलब रूल, ठीक है। तो हम सब यही आज के बाद बोलेंगे कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? तो करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बट इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं? माइनस टू प्लस, ओके। तो अब यहां पे हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द वर्क डन in moving a unit positive charge, okay, from one point to another point. So ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो होता है वोल्ट, ओके। तो कितना वोल्ट का वोल्टेज है, ठीक है ना, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में हम बोलते हैं एक लेमैन के भाषा में। तो V जो है वो इसका मेन सिंबल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, और स्मॉल v जो है वो इसके यूनिट का सिंबल है, ठीक है। तो ये स्मॉल v है गाइस और ये कैपिटल V है, ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कैपिटल V इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्मॉल v इज द सिंबल ऑफ इट्स यूनिट विच इज वोल्ट, ओके। सो आई एम श्योर दैट वी आर मेकिंग सेंस सो फार, और हमें समझ में आता जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर प्रीटी एक्साइटेड फॉर द सेशन टुडे। Now, moving ahead, students, moving ahead, we come to one more concept which we have done in the last year, and that is called as resistance. Okay, what it is called as? Resistance. Now, what is resistance? Resistance is basically a kind of opposition, okay, something which opposes the current to flow, okay. So, we know that there are two types of materials, one are called as metals, okay, and one are called as non-metals. Now we all know that metals are good conductors and non-metals aren't, okay. So that means some material are flexible to carry current, okay, they are flexible to carry current. So such materials are called as conductors, okay. Conductors, one which can carry current, okay, which allow current to flow through them, okay, which allow current to flow through them, okay. This is T, which allow current to flow through them, okay. I hope this is clear, okay. They are called as conductors. And what are other materials? The other materials are called as insulators. ये सब हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स क्या हो गया? विच डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कौन से करंट की बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। फ्लो थ्रू देम। तो यहाँ पे अब हमें ये भी समझ में आ गया कि कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर्स में होता है कम, और इंसुलेटर्स में ये रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि करंट उसमें से फ्लो नहीं हो पाती। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है रेजिस्टेंस की वजह से, और रेजिस्टेंस जो है वो हम सब में होता है, इजंट इट। तो अब रेजिस्टेंस क्या हमारे लिए यूजफुल है या नहीं? तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा येस, रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली यूजफुल टू अस। हाउ एंड व्हाई? सी स्टूडेंट्स, सपोज आई वांट टू कंट्रोल द करंट,
कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो मैं क्या यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा रेजिस्टेंस। ओके, नाउ रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल आर, ठीक है, और इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है V बाय आई, मतलब जो इसका फॉर्मूला है वो होता है V बाय आई, वोल्टेज अपॉन करंट। ओके, ये हमें एक और चीज़ याद रखनी है, और इसका जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है अगेन दैट इज गिवन एज ओम। ओके, इसके बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओम अगेन इज बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स, ओके, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम, और इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक करंट का है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का है, और एक रेजिस्टेंस का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप हमें ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर कंडक्टर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब हमें समझ में आती हैं। सो नाउ वी कैन कम टू द इफेक्ट्स। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्ट्स, व्हाट डू आई मीन टू से, whenever current will flow, okay, it will produce its effect, okay, and that is what is our topic, that is effects of इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा ना, इलेक्ट्रिक करंट, खाली इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके तीन इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। दूसरा इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, और तीसरा इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट। अब ज़्यादा करके जो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में वो है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। उसमें से भी हम पहले किस पे बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई वो होता क्या है, मैग्नेट, ठीक है ना, वो क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है, बेसिकली मैग्नेट जो है वो एक स्टोन है, एक ओर है, ठीक है, जो मिला था माइनर एशिया में सबसे पहले, ठीक है, जिसका नाम था मैग्नेशिया। वहाँ पर ये पत्थर मिला था, ठीक है, और इस पत्थर में एक खास बात थी, वो ये था कि ये जो पत्थर है वो अपने जैसे पत्थरों को अट्रैक्ट कर रहा था और या रिपेल कर रहा था। और यही नहीं, इस पत्थर में एक और खास बात थी, वो कुछ कुछ मेटल्स को भी, जैसे आयरन, ठीक है, आयरन को भी वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस पत्थर का नाम स्टूडेंट्स पड़ गया मैग्नेट, क्योंकि ये कहाँ मिला, मैग्नेशिया में मिला था। अब इस मैग्नेट का एक और टेक्निकल नाम है, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। मैग्नेट जो है उसका टेक्निकल नाम है डाईपोल। क्या नाम है बच्चों, डाईपोल। डाईपोल इसलिए, डाईपोल का मतलब क्या है, अगर तुम लोग सोच रहे हो डाईपोल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है टू पोल्स। ओके, सो टू पोल्स, टू पोल्स का मतलब क्या है, टू पोल्स का मतलब है इसमें एक होता है नॉर्थ पोल, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और एक होता है साउथ पोल, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब क्या है, तो जैसे हम अगर रिलेटिव स्टडी करें, ठीक है, तो करंट में, ठीक है, या फिर चार्ज में, ओके, चार्ज में क्या होता है बेटा, प्लस और माइनस, है ना, प्लस होता है और माइनस होता है। वैसे ही मैग्नेट में क्या होता है, ठीक है ना, मैग्नेट में क्या होता है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज में प्लस माइनस होता है, वैसे ही मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होता है। हम हमेशा कंपेयर करते हुए जाएंगे चार्ज को और मैग्नेट को, ताकि हमारी स्टडी जो है वो हमें ज़्यादा बहुत बड़ी ना लगे, ठीक है, हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग रेफरेंसेज ना हो। तो बहुत सिमिलैरिटी है, ठीक है, बहुत सिमिलैरिटी है चार्ज और मैग्नेट में, ठीक है। तो इन दोनों को हम हमेशा रिलेटिवली स्टडी करते जाएंगे ताकि हमारा क्लैरिटी रहे टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स चार्ज समझ में आ गया और मैग्नेट भी हमें समझ में आ गया। चार्ज यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे थे, नॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे थे। ओके, तो चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है। मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मेन बात क्या है यहाँ पर, मेन बात ये है कि मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी है जो मैंने पहले बताई, ठीक है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, ऑपोजिट पोल्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। और जो सिमिलर पोल्स होते हैं, या फिर हम बोलें सेम पोल्स होते हैं, यहाँ पे हम सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं,
सेम पोल्स जो हैं दे रिपेल ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर यहाँ पर हम एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सिंपल मैग्नेट ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक बार की शेप में और इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है बार मैग्नेट। इसको बार मैग्नेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका शेप ऐसा है, एक बार की तरह है। ठीक है, अभी जो बार मैग्नेट है, अगर मान लें कि यहाँ पर एक और बार मैग्नेट आ जाए, ठीक है, एक और बार मैग्नेट आ जाए। अब अगर तो ये पोल यहाँ पर साउथ है और ये नॉर्थ है। अब देखो क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ आमने सामने आ गए, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम बात करें, ठीक है, कि ये एक बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, और यहाँ पर जो उसके नज़दीक दूसरा एक और बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसका यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। तो अब ये वाला जो मैग्नेट है वो इसको पीछे धक्का देगा और ये जो मैग्नेट है ये भी इसको पीछे धक्का देगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिपल्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिपल्शन। यहाँ पर क्या था? अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिपल्शन। तो ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है, ये दोनों यहाँ से क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपेल करेंगे। अब ऐसा मैग्नेट्स में होता है। ठीक है, किसमें होता है? मैग्नेट्स में होता है। ठीक है, तो हुआ क्या स्टूडेंट्स के 1820 में, ठीक है, कब? 1820 में एक साइंटिस्ट थे H.C. ऑस्टर्ड। ओके, H.C. ऑस्टर्ड ने ऐसा नोटिस किया, क्या नोटिस किया? कि एक जो मैग्नेट है, मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेटिक नीडल है। ओके, ये एक मैग्नेटिक नीडल है और ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है एक स्टैंड के ऊपर। ओके, यहाँ पर एक स्टैंड है और मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है उस मैग्नेटिक नीडल का और ये साउथ पोल है। अब अगर एक कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ओके, और इस कंडक्टर को अगर हमने कनेक्ट कर दिया है एक वायर के साथ, ठीक है, ये हमने सर्किट वगैरह पढ़े हुए हैं, थोड़ा हमें जानकारी है, और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और फिर यहाँ पे हमने बना दी एक की। अब फिलहाल तो की तो ऑफ है, ठीक है, फिलहाल तो की ऑफ है, लेकिन अगर मैं इस की को ऑन कर दूं तो करंट फ्लो होएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से करंट फ्लो होगा। कि मतलब अब अगर ये टर्मिनल ए था और ये टर्मिनल बी है तो करंट कैसे फ्लो हो रही है? ए टू बी, इस तरह से फ्लो हो रही है। ठीक है, अब ऑस्टर्ड सर ने क्या देखा कि जब करंट ए टू बी फ्लो हो रही थी, ठीक है, ए टू बी फ्लो हो रही थी, तो ये जो नॉर्थ वाला पार्ट था मैग्नेटिक नीडल का, ये इस तरह से कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और ये जो साउथ वाला पोल था ये रिपेल होने लगा। अब यहाँ पे और कोई मैग्नेट तो पड़ा नहीं है, लेकिन ये जो कंडक्टर है, जब इसमें से करंट पास हुई, ये बात ध्यान से समझो, जब इसमें से करंट पास हुई तो नॉर्थ वाला अट्रैक्ट होने लगा, उसी तरह से जैसे एक दूसरा मैग्नेट यहां पड़ा हो और उसका पोल क्या हो? साउथ पोल हो, है ना, उसका पोल क्या हो? साउथ पोल हो। ठीक है ना, अगर उसका पोल साउथ होगा तो नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा और साउथ रिपेल करेगा। तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो उन्होंने कहा शायद ये कोई कोइंसिडेंस होगा, मैं एक काम करता हूं, मैं करंट को रिवर्स करता हूं। ठीक है, तो उन्होंने करंट को रिवर्स किया, मतलब अब जो है वो उन्होंने करंट को कर दिया B2A, जो बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है ना, अब उन्होंने जब करंट को B2A चलाया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने रिवर्स कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव, बैटरी को चेंज कर दिया। ठीक है, B2A होने लगा। तो जब ये B2A हुआ तब क्या हुआ? कंडक्टर की तरफ साउथ पोल अट्रैक्ट करने लगा। नाउ साउथ पोल गॉट अट्रैक्टेड। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उन्होंने फिर करंट को रिवर्स किया, फिर नॉर्थ पोल करने अट्रैक्ट होने लगा, फिर करंट को B2A किया, फिर साउथ पोल करने लगा। तो इसका मतलब जब कभी वो करंट को रिवर्स कर रहे थे तो दूसरा वाला पोल अट्रैक्ट हो रहा था। अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, यहां पे उन्होंने एक फिनोमिनन नोटिस किया। उन्होंने क्या नोटिस किया? दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट
carrying conductor behaves like a magnet. करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, कोई नॉर्मल कंडक्टर नहीं, उस कंडक्टर में जिसमें से करंट पास हो रही है. करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट बिकॉज द करंट कैरिंग कंडक्टर वाज अट्रैक्टिंग वन ऑफ द पोल्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट which was flowing through it. So I hope that this statement is very very clear to us. Current carrying conductor behaves like a magnet. ये statement सर ऑस्टेड ने दिया 1820 में, और इसी से हमारा टॉपिक जो सब टॉपिक है वो बना. दैट मीन्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और इसी को हम आगे जाके बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और शॉर्ट में इसका नाम है MEEC. सो आई होप दैट तुम्हें ये समझ में आया कि ये पूरे कॉन्सेप्ट का स्टार्ट पॉइंट क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है. अब जैसे मैंने पहले बताया कि चार्ज और मैग्नेट को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे चार्ज की वजह से ही सब हो रहा है, करंट की वजह से ही सब हो रहा है, ठीक है. तो ये जो चार्ज है, ठीक है. अब दो चीज़ें हो गई इसमें. पहली चीज़ ये समझो कि चार्ज स्टेशनरी है. अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उसके आसपास का एक रीजन होता है जहां पर दूसरे चार्जेस को इसका इफेक्ट पता चलेगा, और इस रीजन को हम बोलते हैं उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट. लाइकवाइज मैग्नेट में एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट बाय अदर मैग्नेट्स. इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट बाय का मतलब, एक अगर मैग्नेट हमारे हाथ में है तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही आयरन को या दूसरे पोल्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है रूम के एक कॉर्नर में और दूसरा रखा हुआ है किसी और कॉर्नर में तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना. तो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑल्सो. तो ये हो गई स्टेशनरी चार्ज की बात. अब जब दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज इज इन मोशन. देखो मैंने पहले ही बोला था चार्ज इज इन मोशन. तो जब एक चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके पास क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड. मोशन खत्म, मैग्नेटिक फील्ड खत्म. तो ये बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किससे रिलेट कर रही है, मोशन से. अगर चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा उसके पास है, लेकिन जब वो मोशन में होता है तब वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, उसके पास खाली कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप दिस इज क्लियर टू अस. सर ऑस्टर ने एक और यहां पे स्टडी की. वो स्टडी क्या थी, उन्होंने करंट को बढ़ाया, ठीक है. मैग्नेटिक नीडल वहीं पड़ी है, ठीक है. मैग्नेटिक नीडल वहीं पड़ी है, करंट को बढ़ाया, ठीक है. तो ये जो पोल है वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा इफेक्ट के साथ अट्रैक्ट होने लगा. मतलब जो फील्ड थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या हो गई, बढ़ गई. अब करंट को उन्होंने कांस्टेंट रखा और इस पर्टिकुलर नीडल को दूर लेके गए, ठीक है, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिया. जब डिस्टेंस बढ़ाया तो उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो गई जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर गए. तो उन्होंने फिर आगे एक बात और बोली, देखो कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. अब आगे जाके हम इसको देखेंगे कि कैसे इनका रिलेशंस है, बट फिलहाल इतनी मोटी मोटी बात हमें समझ में आनी चाहिए. और स्टूडेंट्स इसी का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और यही हमारा इस टॉपिक का पहला पार्ट है, ठीक है. दो में से एक इफेक्ट ये है. तो आई होप दैट आई कुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू यू इन अ वेरी सिंपलर वे एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. एंड फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, माय डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन बिलो. Okay, the number is given, my Telegram channel is given. You can comment on the video and tell me if there is any doubt, any question you may have even after listening to the
lecture. I am sure that I have given you all the details which I felt is necessary for you to understand the topic of magnetic effect of current. With that, this is Aman Bhatia signing off. See you in the next class. Till then, stay home, stay healthy, and keep learning, guys.